Hello friends, in this video I'm going to solve some simple linear and quadratic equations. So let us start with the first question. The question reads 5x plus 7 is equal to x minus 2. So one of the best ways to solve an equation is to bring the x's or the unknown terms to one side and the numbers to the other side. So it's better to bring the x's on the left hand side. So this is your left hand side RHS and this is your RHS, your right hand side. So when I say left hand side, this is your left hand side and this is your right hand side. So I can see x here. I want to get rid of this x. So well, I say how can I get rid of this plus x? So I want to take away x from this side. So you take away x from this side. So I'll do one step at a time. So this will bring the x's on one side. So you go 5x minus x is 4x plus 7. You bring down the 7 is equal to negative 2. Just like that. And then you want to find, you want to get rid of this plus 7 from the left hand side, or you want to bring the numbers on the right hand side. So, well, what's the opposite of plus 7? That's minus 7. So if you take away 7 from left hand side, you should take away 7 from excuse me, you should take away 7 from the right hand side. So this and this gets cancelled. So now you got 4x from on the left hand side is equal to negative 2. Take away 7 is negative 9. So you take away, you divide both sides by 4. So if you divide this side by 4, you may ask, why did I divide by 4? Because it's multiplied by 4. So x is minus 4, 9 over 4. Okay, this is right. Or if you want to simplify this as a decimal, this is minus 4.5 over 2, which is minus 2.25. Okay, and that's your answer. So here what I have done is I have halved this. Half of 9 is 4.5 and half of 4.5 is 2.25. Okay, I got a question sitting here. I made that small. I'll make that bigger now. Okay, now you can see this. X to the power 4 is 81. I'm doing this without a calculator, so I can go, I will think, how can I write this as a fourth power? So do you know any number that raised to 4 gives you 81? So it's good to know that 3 to the power 4 or 3 squared, you should be knowing is 9. That is 3 times 3. 3 to the power 3 is 27 and 3 to the power 4 is 81. So I can say x to the power 4 is same as 3 to the power 4. So now you can compare because this and this can be compared from the left hand side and right hand side. So well, you can say x is equal to 3, just like that. Okay, next question. 5x minus 7x minus 6, 5x squared minus 7x minus 6 is equal to 0. We can do this in different ways. So well, I'm going to think like this. I have to put this in bracket first. I want to put this in bracket. So I'm looking, first look at this. I've got a 5x squared here. So what should come here and in this bracket? So well, I can go 5x squared can only be written as 5x times x or x times 5x, doesn't matter. So 5x times x is 5x squared. Now I want to get this negative 6 by putting a number here and here. So well, what will happen if I put plus 3 and minus 2? Okay, so does it work? So this does give me minus 6. 3 times negative 2 is, but you have to confirm whether you're getting the minus 7x. So you should check this. You can, if you multiply this 2, this will give me plus 3x, and if you multiply this 2, this gives me minus 10x, and this 2 does give you minus 7x, so that's fine. So this is, I'll rewrite this. So this is 5x plus 3
times x minus 2 is equal to 0, just like that. So now this is a quadratic equation. So well, you can say this is equal to 0, 5x plus 3 has to be 0, and x minus 2 has to be 0, because when product of two numbers, I'll repeat this, I have done this in many videos, you can watch my other videos on solving equation. This is a very simple fact. If a times b, if a and b are numbers, if a times b is equal to 0, this implies that a is 0 or b is 0. So using the same fact or same principle, you can say 5x plus 3 has to be 0 or x minus 2 has to be 0. And now if you take away 3 from both sides, you can say 5x is equal to negative 3. So x is negative 3 over 5, which is negative 6 over 10, which is negative 0.6. This is also fine. And if you add 2 to both sides, so x is equal to 2, just like that. These are the two answers. So x is equal to 6, 2, or x is equal to negative 0.6. Okay, the last question. Let me change color. The same principle here. Product of two numbers is negative 8. Okay, so that cannot be applied here. So we have to expand this. I thought it was a 0 here. So if you expand this, so this is 6x minus 2x squared is equal to negative 8. So I'm going to write this as minus 2x squared plus 6x plus 8 is equal to 0. Now I don't like this minus 2 here. I could see a minus 2 here, a 6 here, and 8 here. Now if you ignore this minus, 2, 6, and 8 are all even numbers, so you can divide by 2. So I'm going to divide all by negative 2. And that's acceptable. Whatever you do on to all sides, if all parties are happy, that is, maths doesn't have any problem. So maths has problem. You end up in having problems in most of the examples when you are not fair. Okay, let me bring this color back. So negative 2 divided by, so this and this will get cancelled. So you got an x squared here. 6 divided by negative 2 is minus 3x. 2 divided by negative 8 divided by negative 2 is negative 4, and 0 divided by this is 0. So now this has become a quadratic equation, so you can put in two brackets equal to 0. Okay, so you got an x squared here, you put an x and x here, and negative 4, two factors of negative 4, which gives you negative 3, are negative 4 plus 1. You should always check whether it makes sense or not. X times x gives you x squared, minus 4 times 1 gives you minus 4. Now this is your, if you multiply this 2, that will give you minus 3x, and if you multiply this 2, that will give you plus x. So minus 4x plus x does give you minus 3x. So now if you set this equal to 0, if x minus 4 is equal to 0, you can say x is equal to 4, and if x plus 1 is 0, you can say x is negative 1. Okay, the last question. Okay, now here this is again, you can apply this rule. Product of two numbers is 0, so 3x is 0, and x plus 4 has to be 0. So if 3x is 0, x 3 times what gives you 0? This has to be 0, so x is 0. X plus 4 is 0. What plus 4 gives you 0? So x is negative 4. Hopefully these videos have been helpful. See you in the next video. इस सवाल को देखिए, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर हम इस टर्म को देखें तो ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, और अगर इसको देखें तो ये 2 का स्क्वायर है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स और उनके स्क्वायर्स मौजूद हैं, और अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो
तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट के दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 2 आ जाएगा, और अब अगर हमें इनका दुगना करना हो तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ इसमें अगर हम 4x² ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 4x² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए 4x² को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² + 2 होल स्क्वेयर। इस 4x² को देखिए, इसको हम 2x होल स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप और करें तो ये भी स्क्वेयर, दरमियान में नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स के बारे में पता है, a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x² + 2, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ ये, और x² + 2 एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ ये। इनको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा x² + 2x + 2, और यहाँ से आ जाएगा x² - 2x + 2। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इस टर्म को देखिए, ये स्क्वेयर है x² का, और इसको अगर आप देखें तो ये 8y² का स्क्वेयर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, उनके स्क्वेयर्स मौजूद हैं। अब अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन इनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x², और यहाँ से आ जाएगा 8y²। ये तो आ गई इनकी प्रोडक्ट। अब इनके दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 16x² + y²। इसका मतलब है इसमें 16x² y² ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा। अब क्योंकि हमने इसमें 16x² y² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें से हम इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 8y², ये इसका परफेक्ट स्क्वेयर है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए 16x² y² को हम 4xy होल स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गए, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे x² + 8y², एक दफ़ा प्लस साइन के साथ 4xy, और एक दफ़ा x² + 8y², और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 4xy। इनको अगर रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4xy + 8y², और यहाँ से आ जाएगा x² - 4xy + 8y²। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले देखिए, ये स्क्वेयर है x² का, और 324 स्क्वेयर होता है 18 का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स और दोनों स्क्वेयर हैं। अगर हमने इसे एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x², यहाँ से आ जाएगा 18, ये आ गई हमारे पास प्रोडक्ट, और इनका दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 36x²। अब क्योंकि हमने यहाँ 36x² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 36x² को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x²
प्लस 18 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 36x² है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x² अब देखिए यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गए हमारे पास, और डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है x² प्लस 18, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ प्लस 6x, और यहाँ से आएगा x² प्लस 18 और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 6x। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर हम इस टर्म को देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x² और 9 को हम 3² के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों के स्क्वेयर हैं, तो अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वेयर तो हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x², यहाँ से 3 आ जाएगा, ये इनका प्रोडक्ट आ गया, उसके दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 6x²। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पहले से ही 2x² मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि 2x² में अगर हम 4x² ऐड करें तो हमारे पास 6x² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x² प्लस 4x² प्लस 3 ये देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 4x² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 4x² को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3 स्क्वेयर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन, इसको हम 2x² से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x²। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ 2x, और यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 3, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 2x। इस सवाल को देखिए, इसमें सबसे पहले इस टर्म को देखें तो ये स्क्वेयर है z² का, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z² प्लस 16 को देखिए तो ये 4 का स्क्वेयर होता है। अब अगर आप गौर करें तो एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों स्क्वेयर हैं, और अगर हमने को एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। यहाँ पर हमारे पास 4, ये मल्टीप्लाई होगा z² से, तो ये तो आ गया इनका प्रोडक्ट। इनके दुगने के लिए जब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 8z²। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव z² मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब हम 9z² ऐड करेंगे तो हमारे पास 8z² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया z² और उसका स्क्वेयर, नेगेटिव z², पॉजिटिव 9z², ये 8z² बन गए, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4²। तो ये तो बन गया एक परफेक्ट स्क्वेयर। अब क्योंकि हमने यहाँ 9z² ऐड किए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 9z² सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया z² प्लस 4 होल स्क्वेयर, और यहाँ पर देखिए इसको हम 3z होल स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर, तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z² प्लस 4, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ 3z, और दूसरी दफ़ा z² प्लस 4 नेगेटिव साइन के साथ 3z। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर इस टर्म को देखें तो इसको हम y² स्क्वेयर से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y²
और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है। अब अगर इफ़ टर्म और इफ़ टर्म को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके स्क्वायर्स मौजूद हैं, और अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वायर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। इसके दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 20 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 वाई स्क्वायर पहले से मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वाई स्क्वायर में अगर हम 16 वाई स्क्वायर ऐड करें तो हमारे पास 20 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमने 16 वाई स्क्वायर ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 16 वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास देखिए 16 वाई स्क्वायर को हम 4 वाई स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन और दोनों साइड पे स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10 एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10 एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इस टर्म को देखिए, ये स्क्वायर है 2a स्क्वायर का। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 8a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको देखें तो ये 3b स्क्वायर का स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पर देखिए एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों स्क्वायर्स हैं। इसको अगर हमने एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वायर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। यहाँ पर हमारे पास 2a स्क्वायर, यहाँ पर 3b स्क्वायर। अब इस प्रोडक्ट का दुगना लेने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास 8a स्क्वायर b स्क्वायर पहले से मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12a स्क्वायर b स्क्वायर बनाना चाहें तो हमें 8a स्क्वायर b स्क्वायर में 4a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्योंकि हमने यहाँ पर 4a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 4a स्क्वायर b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको देखिए, इसको हम 2ab होल स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखिए दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वायर्स, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ 2ab, और यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और दूसरी दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 2ab। इस सवाल को देखिए, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए अगर सबसे पहले हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x टू दी फोर्थ माइनस 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x। इसको हम x स्क्वेयर के स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वेयर स्क्वेयर। 1 को हम 1 स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दो टर्म्स में देखें तो हमारे पास नेगेटिव 2x कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 1। ये देखिए दरमियान में नेगेटिव साइन और दोनों साइड पर स्क्वेयर्स, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स, तो इसको x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x और यहाँ पर x स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ से x स्क्वेयर माइनस 1 कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 1, x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस
2x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, माइनस 2x को हम माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और यहाँ पर देखिए इन पहली दो टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 1। यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और यहाँ पर अंदर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब है दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर्स, तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए ये भी x माइनस 1, ये भी x माइनस 1, ये भी x माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 क्यूब। इसको नीचे उतार लें तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर हम इनकी टर्म्स को रीअरेंज कर लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a टू दी फोर्थ, उसके बाद माइनस b टू दी फोर्थ और उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिख लें 2a क्यूब b प्लस 2ab क्यूब। इसको देखिए ये स्क्वायर है a स्क्वायर का, ये स्क्वायर है b स्क्वायर का। यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म में से हमारे पास 2ab कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड्स पर स्क्वेयर्स हैं तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 2ab और यहाँ इसके अंदर आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। यहाँ से a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। इसको अगर आप देखें a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वेयर के, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वेयर। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर्स, तो फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गए तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ a माइनस बी होल स्क्वेयर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी क्यूब और इसको नीचे उतार लें तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी। इस सवाल को देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए बाहर नेगेटिव साइन तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव a स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव b स्क्वेयर। इनको अगर हम अब रीअरेंज करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1 माइनस a स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस b स्क्वेयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अब अगर आप और करें तो ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वेयर के और यहाँ से अगर इसको नीचे उतार लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए इस 1 को हम 1 स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो यहाँ देखिए हमारे पास दरमियान में नेगेटिव साइन और दोनों साइड पे स्क्वेयर्स हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस a माइनस बी
और दूसरी दफ़ा अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी।